Good morning, everyone. So, how are you all doing? So, welcome to the course on prayer and intercession. और प्रार्थना और मध्यस्थता के विषय पर आप सभी का स्वागत है We also welcome those of us who've joined online. और जो ऑनलाइन है उनका भी स्वागत करते हैं So, before we begin our session for today, can I request one of us to lead in prayer? और आज के सत्र को शुरू करने से पहले कोई भी एक चीज प्रार्थना कर सकते हैं इसके बाद माइक है Yes. Geeta, you want to pray? Yes, sir. Yes, please. God in heaven, thank you so much, Father God, for this wonderful morning. Thanks for adding one more day in our life. God, thank you so much for the help, love, grace, mercy you extended, Father God, in our life. Help us, Father God, to be grateful. God, help us, Father God, whatever you want us to learn in our life, help us to learn and glorify your name, Father God. Thanks for all the students, even faculties, and every one of us, Father God, uh, for this time, Father God. Thank you. Thank you so much. Give us more wisdom and knowledge, Father God, to understand and draw more closer to you, Father God. Thank you so much for everything. Love you. Pray everything through Jesus' name. Amen. 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 Thank you. So, before we go into today's session, और आज के सत्र में जाने से पहले so can I request one or two of you to share what is some truth or something that you could apply from our last session? और क्या आप में से एक या दो जन इस बात को बता सकते हैं कि वो कौन से सत्य हैं जो पिछले सत्र में हमने सीखे और अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन में उसे हम लागू कर सकते हैं Or maybe a simple thing like you can just share, or even those who are online, you can just post it or you can unmute and speak. We'll just take 2 to 3 minutes. और हम 2 या 3 मिनट लेंगे आप एक पंक्ति में साधारण शब्दों में बता सकते हैं कि क्लास प्रार्थना मध्यस्थता में हम क्या सीखते हैं Praise the Lord. What we learned last week was prayer. Prayer is an important thing to start the day. We pray to the Lord. We seek His guidance to walk the life, also to walk in the path of righteousness. Thank you. Thank you so much. और हम लोग इसमें अपने सीखा था कि हमें जो है दिन का आरंभ प्रार्थना से करना चाहिए से प्रार्थना करते हैं हमें लोगों को खुश करना चाहिए So, anyone would like to share? Yeah. the nature of God Oh, yes. Pray according to the nature. God affirm our foundation Yes. Yes. Thank you. Thank you. Okay, can I speak? Now, the authority was taken away from us by Satan, and it was taken back from Satan because of the death of Jesus on the cross and given it back to us. So we have the authority now. So we have to use that authority to, and God has chosen us to fulfill His plans. He has given us the beautiful chance of being co-workers with Him, so that we can work along with Him. God is very powerful, all powerful, and He can do everything, but He's given us the chance to do His work for Him. Yes, God. This is what I understand. Thank you. Thank you. मैंने ये सीखा कि जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया शैतान के द्वारा दिया गया लेकिन उस परीक्षा के मौत के द्वारा दोबारा से जो अधिकार हमें दे दिया गया अब हमारे पास अधिकार है So, thank you everyone for sharing, and I'm sure it's a blessing to each and every one of us. और आप सभी का धन्यवाद कि आपने बांटा मैं विश्वास करती हूँ आप सभी के लिए आशीष का कारण होगा
So what we were seeing in our previous class is how to have a strong prayer life, the foundation for a strong prayer life. और पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार एक मजबूत प्रार्थना जीवन की नींव को बना सकते हैं। The more stronger the foundation, the stronger and fruitful our prayer life will be. और जितना ज्यादा नींव मजबूत होगी उतना ज्यादा हमारा जीवन मजबूत और फलवंत होगा। So today we're going to see some more truths about laying a good foundation or a strong foundation for our prayer life. और आज हम और कुछ बातों को देखेंगे कि अपने प्रार्थना जीवन के लिए किस प्रकार हम एक मजबूत दृढ़ नींव को डाल सकते हैं। So as we learned, we saw how important it is to know the nature of God, to know Him for who He is. और जैसे हम सीख रहे थे हमने इस बात को जाना कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर कौन है इस बात को जाने। And we also saw how we can pray in accordance with the nature of God. और हमने इस बात को भी देखा कि किस रीति से हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। And we were in the topic of developing an intimacy with God. और हम एक बिंदु पर थे कि परमेश्वर के साथ में घनिष्ठता हमको विकसित करनी है। So we saw how prayer is birthed out of our relationship with God. और हमने देखा था कि हमारा प्रार्थना किस प्रकार परमेश्वर के साथ रिश्ते से जन्म लेता है। So we also saw that we can all develop or come to that place of intimate fellowship with God. और हमने ये भी देखा था कि हम सभी परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते में आ सकते हैं। So we may not be there yet at that place. और हो सकता है कि हम अभी तक उस जगह पर ना हो। So as we desire and thirst for more, और जैसे जैसे हम और अधिक के लिए भूखे और प्यासे होते हैं the Lord draws us closer to Him और परमेश्वर हमें अपने नजदीक बुलाते हैं and He takes us into greater depths, और परमेश्वर हमें और गहराई में अपने वचन के लिए जाते हैं and we will know who He is. और हम जान पाएंगे परमेश्वर कौन है। So He reveals to us His heart, His will, His mind. परमेश्वर जो है अपने दिल को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है। Then we can all flow out of that place of intimacy, all our life, our family, and everything. और हर एक चीज, चाहे वो हमारा जीवन हो, हमारा परिवार हो, हर एक चीज को उस स्थान से हम आगे बढ़ा सकते हैं। So we see that there's an overflow of His presence in our life. और हम ऐसा भी देखते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर में बहुतायत से बहती है So that flows to others. और जो दूसरों तक बह के जाती है It also blesses others. और वो दूसरों को भी आशीषित करती है। So we are going to read few verses from the Bible. और हम बाइबल से कुछ वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं So this is in page 11. और ये हिंदी में पेज नंबर 14 पे है। So while Jesus was on this earth, He still enjoyed a close communion and walk with the Father. और देखिए जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे वो पिता के साथ चलते और उसके साथ संगति भी किया करते थे। So in John 4:34 we see, और यूहन्ना 4:34 में हम देखते हैं my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. और मेरी इच्छा उस जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। So from this we see that Jesus was always focused on doing the will of the Father and to finish His work. और हम इसलिए कि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर पिता की इच्छा को जानने और उसके कार्य को पूरा करने में ही लगे रहते थे। So for this he was always hearing and receiving from God. और वो हमेशा परमेश्वर से सुनते और प्राप्त करते थे। And we see that the Father's voice was the loudest and clearest to Jesus. और हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर की ही आवाज यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा स्पष्ट और तेज थी। So it's very clear that Jesus was spending time alone with the Father. और इसका बिल्कुल बात स्पष्ट आती है कि यीशु मसीह पिता के साथ में एक घनिष्ठ रिश्ता या समय बिताते थे। And John 5:17 we read, और यूहन्ना 5 उसके 17 में जब हम पढ़ते हैं my Father has been working until now and I have been working. और मेरा पिता अब तक
कार्य कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। यूहन्ना 5:17 में लिखा है। Jesus works when the Father works. और यीशु तब काम करते जब पिता काम करते हैं। So how do we know the Father's works and how does he know his Father's time? और हम कैसे जाने कि पिता काम कर रहा है, कैसे जाने कि पिता के काम का समय क्या है। So can I request one of us to read John chapter 5 verses 19 and 20? और कोई भी यूहन्ना 5 उसका 19 और 20 वचन पढ़ सकते हैं। John chapter 5 verses 19 and 20. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 19 और 20। जिसके माइक पास के माइक को वो पढ़ी जरा दूर से। Jesus gave them this answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. Amen. Yes. Can I request one of us to read in Hindi also? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। So we see that the Father does not do anything, the Son does not do anything what the Father does not show him. और देखिए हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि पुत्र वो काम बिल्कुल नहीं करता जो पिता उसे नहीं दिखाता। He declares that he can do nothing of himself. और वो इस बात की घोषणा करता है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। And we see that the Father loves the Son, and so he reveals himself to the Son. और पिता पुत्र से प्रेम करता है, यही कारण है कि वो पुत्र के ऊपर में प्रकट नहीं करता है। So there is this close, intimate connection between the Father and the Son. और यहाँ पिता और पुत्र के बीच में वो रिश्ता जो है वो बहुत घनिष्ठ है। So Jesus does everything from this place. और यीशु मसीह पर एक चीज उसी स्थान से करता है। This place of close connection with the Father, और ये पिता के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता है, स्थान है, even while he was walking on this earth. और जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चला फिरा करते थे तब भी। So what I want to encourage each of us is, और मैं आप सभी को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, when we choose to spend that time alone with God, और जब हम परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताने के लिए चुनाव करते हैं, so we will know more of God, और हम परमेश्वर को और अधिक जान पाएंगे, His presence, His guidance, His will, और उसकी उपस्थिति, उसकी अगुवाई, उसकी इच्छा को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, and we can also work from that place. और उस स्थान से जानकर हम परमेश्वर की कार्यों को कर पाएंगे। So we will fulfill all what the Lord has for us. और परमेश्वर ने जो सारे काम हमारे लिए रखे हैं हम उन्हें पूरा भी कर पाएंगे। We see further in John chapter 5 that Jesus always sought and did the Father's will. और हम यूहन्ना 5वें अध्याय में और भी कई बातों को देखते हैं कि यीशु ने हमेशा पिता की बातों को देखा और कार्यों को किया। Which means he was always thinking about the Father. और इसका मतलब है कि वो हमेशा पिता के बारे में ही सोचता था। So as we keep meditating His word and reading His word, और जैसे हम निरंतर उसके वचन पे मनन करते और पढ़ते रहते हैं, so our mind will be focused completely on God's word. और हमारा मन पूरी प्रीति से परमेश्वर के वचन पर केंद्रित रहता है। So that is the secret we should follow. और यही एक वो गुप्त बात है जिसका अनुसरण हमें करने की आवश्यकता है। This secret of sitting in the secret place just like Jesus. और देखिए ये गुप्त बात कि हम यीशु के समान गुप्त स्थान पर बैठे रहें। John chapter 6:57 we read, और यूहन्ना 6 उसका 57 जब हम पढ़ते हैं, as the living Father sent me and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. और जीवित परमेश्वर ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा।
So as we keep spending time reading his word, pondering his word, meditating his word, we also begin to live like Jesus, think like Jesus, and work like Jesus. और जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसी में मंडराते रहते हैं, तब हम यीशु के समान सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे। So we might have seen a father and a son, like the son imitates exactly what the father does. और देखिए हमने पिता पुत्र को देखा होगा, पुत्र जो है बिल्कुल वैसी ही नकल करता है जैसा पिता काम करता है, Because he is seeing his father every day. और क्योंकि वो अपने पिता को प्रतिदिन देखता है। So sometimes the younger sibling will exactly do what the eldest one does. और कई बार जो छोटा भाई बहन होते हैं बिल्कुल वैसी ही हरकत करते हैं जैसे बड़े भाई बहन करते हैं। Because we are spending time in the same home, same family, we just keep observing. और क्योंकि एक ही घर के अंदर में है, एक ही साथ में समय बिताते हैं, तो निरंतर हम उन्हें देखते रहते हैं, परखते रहते हैं। So likewise, when we keep spending time alone with our Father God, और वैसे ही जब हम अपने पिता परमेश्वर के साथ अकेला समय गुजारते हैं we are his daughters and और sons, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, we will be exactly imitating him here on earth. और हम पृथ्वी पर सटीक परमेश्वर की नकल को उतारेंगे भी। In John chapter 8, verses 28 and 29, we read, और यूहन्ना 8 उसके 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, the Father has taught, like that Jesus speaks. और देखिए पिता ने सिखाया और वैसा ही यीशु बोलते हैं। So Jesus teaches us how to speak. और यीशु मसीह सिखाते हैं कैसे हमें बात करना है, So we will do exactly what he teaches us. और हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जो यीशु मसीह हमें सिखाएंगे। And just like the presence of the Father was always with Jesus, his presence, the Father's presence, is always with us. और देखिए जैसे यीशु की उपस्थिति यीशु के साथ में पिता की उपस्थिति थी, वैसे ही हमारे साथ यीशु की उपस्थिति निरंतर बनी रहेगी। So when we have a close connection, we have his presence, his word guiding us, and we will be exactly living the same life like और जब Jesus. परमेश्वर का वचन हमारे साथ होगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, तब हम ठीक वैसा ही जीवन जिएंगे जैसा यीशु मसीह चाहते हैं और उन्होंने जिया। We will be pleasing God always. और हम हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे। So we see many examples in the Bible who had this intimate relationship with God. और बाइबल के अंदर में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बड़ा घनिष्ठ था। So remember in the last class towards the end, I had asked you to read a portion from the Bible. और क्या आपको याद है पिछली क्लास में मैंने बाइबल का एक पद पढ़ने के लिए आप सभी से कहा था? Did any of you get a chance or time to read Exodus chapter 30, और निर्गमन 33? और 33 पढ़ने का किसी को समय मिला? निर्गमन 33 पढ़ा किसी ने? So it talks about a man called Moses. और देखिए वो एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा था, उसके बारे में बात करता है। Yeah, thank you online also, those of us who have read. So in Psalms 103 verse 7 we read, he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. और देखिए भजन 103 उसके साथ में लिखा, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपना काम प्रकट किया। So Moses spent time more with God. So God chose to show himself, reveal himself to Moses. और मूसा ने परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया, जिसके कारण परमेश्वर ने अपने आप को मूसा पर ज्यादा प्रकट किया, उसको अपने आप को ज्यादा दिखाया। If we turn our Bible to Exodus 33 verse 11, और यदि हम अपनी बाइबल को निर्गमन 33 उसके 11 में पढ़ें, we see that the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. और देखिए हम वहाँ इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने बिल्कुल ऐसे बात किया जैसे कि एक मित्र अपने मित्र से बात करता है। So Moses chose to spend time with God. और मूसा ने परमेश्वर के साथ समय बिताने को चुना, God is already waiting there और to speak to परमेश्वर him. वहाँ इंतजार करता था। So when Moses went,
और जब मूसा गया they were speaking to each other और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे like a friend. और बिल्कुल एक मित्र के समान। So imagine such a mighty God. He just wants to converse with us like a friend. और सोच कर देखिए एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहता है, वो भी एक मित्र के समान। So there was somebody else who noticed this, and that is Joshua. और देखिए ये एक और व्यक्ति था जिसने इस बात को ध्यान से देखा, उस व्यक्ति का नाम यहोशू था। He led Israelites after Moses. और उस व्यक्ति ने मूसा के पश्चात इजरायलियों की अगुवाई को किया। So we see that Joshua was lingering around the presence of the Lord in that tabernacle. और हम इस बात को जानते हैं कि तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के आसपास ही यहोशू बना रहता था। So we see what is going on there. In verse 13 we read Moses is asking God, और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, if I have found grace in your sight, और यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, show me your way, और अपने मार्ग मुझे दिखा, that I may know you और ताकि मैं तुझे जानूं and that I may find grace in your sight. और तेरी नजर में अनुग्रह प्राप्त करूं। So Moses wants to know God. और मूसा परमेश्वर को जानना चाहता था He wants to know his character, his ways. और वो उसके चरित्र, उसके मार्ग पहचानना जानना चाहता था। And most importantly, he's asking for grace in the eyes of God. और सबसे बढ़कर वो परमेश्वर से अपने जीवन के अंदर में अनुग्रह चाहता था। We earlier saw that the children of Israel saw the acts of God. और हमने देखा है पहले भी कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के कार्यों को अनुभव किया था। They know what he was able to do. और वो जानते थे परमेश्वर क्या करने के योग्य है। But the difference is Moses wanted to know God himself. और लेकिन भिन्नता ये है कि मूसा तो परमेश्वर को ही जानना चाहता था। His ways, his character, and his acts. और परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के स्वभाव को। So in verse 15 we see Moses is telling God, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. और देखिए 15 वचन में हम पढ़ते हैं मूसा कह रहा है, यदि तेरी उपस्थिति हमारी अगुवाई ना करे तो हमें यहाँ से आगे ना ले जाना। So Moses was only satisfied with God himself. और मूसा केवल परमेश्वर के द्वारा ही तृप्त था। So he was knowing for sure that God with him is the difference between him and those who did not know God. और देखिए वो परमेश्वर, मूसा इस बात को जानता था कि उसमें और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो भिन्नता क्या थी। So the presence of God going with them is the only difference between them and the enemy nation. और देखिए जो वो परमेश्वर की उपस्थिति उनके आगे आगे चल रही है, वही बात जो है उनको उनके शत्रुओं से अलग करती, भिन्न करती है। He's not satisfied with this, and then he's asking God to reveal his glory to him. और वो उस बात से भी तृप्त नहीं हुआ और परमेश्वर से निवेदन करता है कि अपनी महिमा मुझ पर प्रकट कर। So glory is just resting and abiding in his presence. और महिमा यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करना और उसी में बने रहना है। So slowly we all can get to that place. और हम सभी धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच सकते हैं। So the answer is in Isaiah chapter 40 verse 31. और देखिए उसका उत्तर जो है यशायाह 40 उसके 31 पे पाया जाता है। How can we get to that place? और हम कैसे उस स्थान पर पहुंच सकते हैं? So can I request one of us to read Isaiah 40 31? और 40 31 कोई भी यशायाह का पढ़ सकते हैं। But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yes, amen. Amen. So when we wait in the presence of the Lord, और जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं so we gain strength. और हम बल प्राप्त करते हैं।
We grow from strength to strength. और हम बल से बल प्राप्त करते जाते हैं We rise up with wings like eagles. और हम उड़ाव के समान उड़ते हैं So we will walk and not faint. और हम दौड़ेंगे तो लेकिन श्रमित ना होंगे We will run and not be weary. और हम चलेंगे लेकिन थकित ना होंगे So all that the Lord has for us, we will be able to do just by sitting in the presence of the Lord and following his direction. और जो सब परमेश्वर के पास हमारे लिए है केवल हम उसे प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने और उसके साथ चलने के साथ में That's exactly what Jesus did. और वही यीशु मसीह ने भी किया He spent the time with God alone, और उसने परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताया and throughout the day he was in communion with God, serving others with compassion and love. और परमेश्वर की संगति के साथ दिन रहने के बाद दिन भर वो लोगों की प्रेम के साथ तरस के साथ सेवा को करता रहा What we receive in the secret place from God और जो गुप्त स्थान में हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं gives us the strength and encouragement to serve others joyfully. और वो हमें बल भी देता उत्साह भी देता है कि हम आनंद के साथ दूसरों की सेवा कर सकें Bible says, "Blessed is the man whose strength is in you." और बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति जिसका बल तुझ में पाया जाता है So, when we see the example of Moses, we are encouraged to spend time alone with God. और देखिए हम इस बात के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में अपने समय को बिताएं So, we also see the children of Israel. और हम इजराइल के बच्चों के बारे में अगर देखें We see that they called unto God at the time of their suffering and desperation. और जब वो समस्या में थे और आवश्यकता में थे तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा God sent them Moses and delivered them. परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उन्हें छुटकारा भी दिलाया We see that God showed them favor, mercy, and grace. परमेश्वर ने उनको कृपा दया अनुग्रह उन पर दर्शाया They came out from Egypt very strong physically, और वो शारीरिक रीति से जब मिस्र से निकले तो बहुत मजबूती के साथ निकले and with a great plunder. और उसके साथ साथ एक बड़े वैभव भव्यता के साथ में निकले Then we see the Red Sea miracle. और उसके बाद में हम लाल समुद्र का चमत्कार देखते हैं They saw how God's glory and his presence protected them in the morning. और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा ने दिन के समय उनकी रक्षा सुरक्षा की By the pillar of cloud और बादल के खंभे के रूप में and pillar of fire by night. और रात्रि में आग के खंभे के साथ में So they also saw everything what God did for them. और उन्होंने हर एक उस बात को देखा जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था But we also see that they were complaining and grumbling about everything, from food to water. और हम इस बात को भी देखते हैं कि उन्होंने हर एक बात के लिए गुड़गुड़ाया परमेश्वर के विरोध में गए पानी के लिए खाने के लिए So Moses was also with them. और मूसा उनके साथ में था And we see that God gave them food of angels, manna, when they asked for it. और देखिए जब परमेश्वर वो इस बात को देखता है कि जब इस्राएलियों ने भोजन को मांगा तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भोजन मन्ना उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया Then God gave them quails also. और परमेश्वर ने उन्हें बटेर खाने के लिए भी भेजी Yet nothing could satisfy them. और लेकिन फिर भी कोई बात उन्हें तृप्त ना कर सकी So they were yearning for cucumbers and garlic and melons, which they left in the slavery of Egypt. और वो गुड़गुड़ा रहे थे लहसुन के लिए प्याज के लिए खीरे के लिए जिन्हें वो मिस्र में पीछे कहीं छोड़ आए थे So we see that they were stiff-necked. The Bible calls them stiff-necked and very ungrateful. और देखिए बाइबल उन्हें कड़ी गर्दन वाला और बिना धन्यवाद के हृदय वाला मनुष्य कहकर पुकारती है So we see that because of their own nature, they could not experience this intimacy with God. और हम इस बात को देखते हैं कि वे अपने स्वभाव के ही कारण परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का अनुभव नहीं कर पाए So intimacy with God is for everyone. और जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है वो हर एक जन के लिए है So God wants each and every one of us to pursue intimacy. और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जन उस घनिष्ठता के पीछे चलने पाए So if there is something within our nature
similar to this, then we may not be able to grow in our intimacy with God. और देखिए अगर हमारे हृदय के अंदर में भी इन जो इजरायली स्वभाव थे उनमें से अगर कोई स्वभाव पाया जाता है तब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते का अनुभव नहीं कर पाएंगे। So Moses did not experience this intimacy overnight. और मूसा ने एक रात में ही परमेश्वर के साथ ये घनिष्ठता का अनुभव नहीं करा। If we see earlier in Exodus chapters, we see that Moses was very impulsive. और हम अगर निर्गमन की पहली पुस्तकों को देखें तो इस बात को पढ़ते हैं कि जो मूसा है वो बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला व्यक्ति था। When he recognized his purpose and he wanted to help his Hebrew brothers, और जब उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता चला और वो अपने इब्रानी भाई की मदद करना चाहता था, he did it in his own terms and conditions. और उसने अपने ही तरीके से उसको कार्य को किया। He went to the extent of killing. और उसने यहाँ तक एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। And then we know that he had to run away from Egypt and God had to deal with him in the wilderness. और हमें इस बात का पता है कि फिर उसे मिस्र से भागना पड़ा और परमेश्वर को बाद में जंगल में उससे मुलाकात करनी पड़ी। Although there was a delay from his side, और देखिए फिर भी उसकी तरफ से देरी हो चुकी थी। we see that Moses enjoyed complete intimacy with God. और फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता है उसका पूर्ण लाभ आनंद उठाया। In Exodus 34 verses 29 and 30, और निर्गमन 34 उसका 29 और 30 जब हम पढ़ते हैं, so Moses spent time with the Lord in Mount Sinai for 40 days and 40 nights. और मूसा जो है परमेश्वर के साथ में सिनै पर्वत पर 40 दिन 40 रात समय बिताता है। We see twice that it's mentioned that the skin of his face was shining. और देखिए हम इस बात को देखते हैं, दो बार इस बात को दर्शाया गया है कि उसका जो चेहरा है वो चमकदार हो गया था। So God's presence was reflecting on his face, और परमेश्वर की उपस्थिति उसके चेहरे पर प्रकट हो रही थी। and this was visible to Aaron and the children of God. और ये जो है हारून को और इजराइल के बच्चों के लिए स्पष्टति हर एक को नजर आता था। So others will know that we have spent time with God if we are in the Lord's presence. और देखिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब दूसरे लोग इस बात को पहचान सकते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। We also see in Acts chapter 4 verse 13, और प्रेरित 4 उसके 13 में भी हम पढ़ते हैं, when the people saw the disciples, they knew that they were with Jesus. और देखिए उन्होंने जब चेलों को देखा तो वो इस बात को जान गए कि ये लोग यीशु मसीह के साथ में रहा करते थे। So we can very clearly understand that intimacy with God helps us to know more about God and God revealing himself to us. और देखिए घनिष्ठता से सीधे समझा जाए तो परमेश्वर के साथ हम और गहराई के साथ में, और परमेश्वर हमारे साथ में और गहराई के साथ समय बिताता है। So we see that when Moses came down from the mountain, his face was glowing. और हम देखते हैं कि जब मूसा जो है पर्वत से नीचे उतरता है उसका चेहरा जो है वो बहुत चमकदार हो जाता है। So, and everyone were able to see that. और हर एक जन उसके चेहरे की उसे चमक को देख पा रहा था। So that should actually encourage us. और हकीकत में वो बात हम लोगों को बड़ा प्रोत्साहित करनी चाहिए। This is not the facials that we get done here on earth. और देखिए ये वो रंग रोगन जो चेहरे का होता है ये संसार में करते हैं वो नहीं है। In fact, we have to pay for those facials and there are many things और देखिए मुंह पर in the world. जो चिपड़ा जाता है, लगाया जाता है, उसके लिए दुकान में जाके हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। I can see smiles all over, especially the girls. और लड़कियों के चेहरों पे तो मुस्कुराहट। So I think they're thinking about the free facials. So, और ऐसा लग रहा है कि Just लोगों kidding. को ब्यूटी पार्लर का पैसा नहीं देना पड़ता। so I would like to encourage each of us that this is the highest privilege that we have as God's children. और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते बहुत ज्यादा हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। But this is a choice. और लेकिन फिर भी ये एक चुनाव है। So God doesn't compel us.
परमेश्वर जोर जबरदस्ती नहीं करता It's not by force, और दबाव से नहीं करता, but when we choose to spend time with Him, और लेकिन जब हम प्रभु के साथ समय बिताने को चुनते हैं He fills us with His presence and और glory, परमेश्वर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति से हमें भरता है and that overflows to be a blessing to others. और तब वो हमसे बहकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाती है। So we are just giving ourselves as the vessel. और हम अपने आप को केवल एक बर्तन की तरह दे रहे हैं So it's a channel that flows through us. और वो हम एक नाली है, परमेश्वर हमारे द्वारा हमसे बहता है। So we should be mindful that there are some barriers that stop our intimacy with God. और हमें इस बात को हमेशा मन में रखने की आवश्यकता है कि कुछ रुकावटें हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ता को रोकती हैं। So this is mentioned in page 12. और 12वें नंबर के पेज में दिया गया है। So we should be always focused on who we are in Christ. और हमेशा हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम मसीह में कौन हैं। And as we saw in last class, He has given us the authority to pray. और देखिए जैसा हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए अधिकार भी दिया है। So we go to God not in our own righteousness. और हम अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं We go because of the righteousness of Christ within us. और हम मसीह जो हमारे भीतर है उसकी धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के पास में जाते हैं। So this should set us free and help us to walk in line with God. और ये बात को हमें आजाद करना चाहिए और परमेश्वर के साथ मिलकर चलने में मदद करना चाहिए। So we should not allow any lie of the enemy to come between us and God. और हमें किसी भी झूठ को हमारे और परमेश्वर के बीच में आने के लिए अनुमति नहीं देना है। So sometimes the enemy might tell, oh, today you did not pray so much, you did not read the Bible, so, you should feel guilty or a sinner. Don't believe such lies. और देखिए शैतान शत्रु ऐसा कह सकता है, आज तुमने बाइबल नहीं पढ़ा, आज तुमने सही से प्रार्थना नहीं करा, तुम सही आदमी नहीं हो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर के साथ शैतान के झूठ पर विश्वास ना करें। I am a child of God. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ I know who I am in Christ. और मुझे पता है मैं मसीह में कौन हूँ The blood of Christ has set me free. और मसीह के लहू ने मुझे आजाद किया है। You just mind your business, Satan. और तू अपना काम कर ले। That is how we have to deal with Satan and his lies. और देखिए हमें शैतान और उसके झूठ के साथ वैसा ही व्यवहार करने की आवश्यकता है। Never engage in conversations with the Satan. और शैतान के साथ बातचीत करने में कभी अपना दिमाग मत खर्च करिए। For this, we should know the word of God. और इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। So much we spend time with God, we know the absolute truth, we stand in that truth. और हम इतना समय परमेश्वर के साथ बिताएं कि परमेश्वर के सत्य को जाने और उस सत्य में हम खड़े भी रहें। And sometimes it will be a lack of discipline. You really want to go, but then spending time with God, but you don't choose to go. और देखिए कई बार ये निर्णय की कमी हो जाती है कि आप करना तो चाहते हैं, आप प्रभु के साथ समय तो बिताना चाहते हैं, परंतु आप चुनते नहीं है कि आप उसके साथ समय बिताएं। So don't give in to laziness, और आलसी ना हो। because Jesus himself went. और क्योंकि यीशु मसीह खुद गए थे Jesus went day after day after day. और देखिए यीशु मसीह खुद प्रार्थना करने के लिए दिन प्रतिदिन जाते थे प्रार्थना करने के लिए। How much more should we be diligent in this discipline? और तब हमको कितना ज्यादा इस अनुशासन के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है। And we see third, the example of Mary and Martha. और यदि हम मरियम और मार्था का उदाहरण देखें, So we also heard in our mentoring hour today. और आज सुबह भी हमने मेंटरिंग आवर में सुना था। So sometimes we keep serving others, but we don't spend time with God. और अक्सर क्या होता है हम सेवा करते रहते हैं लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं बिताते। So at that time, we cannot give from our emptiness. Only when we receive from God can we give others. और उस समय पर दूसरों की सेवा करते समय अपने खालीपन से हम किसी को नहीं तृप्त कर सकते। जब तक हम परमेश्वर से प्राप्त नहीं करेंगे हम लोगों को नहीं दे पाएंगे। Jesus is more concerned about our relationship and fellowship with Him than what we can do for Him.
और देखिए यीशु मसीह इस बात पर ज्यादा ध्यान देता है, पड़ता है कि हमारा रिश्ता, हमारी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ ज्यादा हो, इसके इजाफे में कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। The secret behind this is when we spend time with God, we will be able to do all that He has और kept for देखिए us. रहस्य इसके कि जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, जो कुछ परमेश्वर के पास है उन सब को हम कार्य में कर पाएंगे। So we also read in the book of Revelation chapter 2 about a church in Ephesus. और देखिए प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में हम एक कलीसिया के बारे में जो एफिसस में है उसके बारे में पढ़ते हैं। So God is happy about their works, their patience and their perseverance. और देखिए परमेश्वर उनके धैर्य के बारे में, उनके धीरज के बारे में, उनके कामों के प्रति बहुत प्रसन्न है। But he says, nevertheless, I have this against you. और वो आगे कहता है कि तुम्हारे विरुद्ध मुझे ये कहना है, You have left your first love. और तुमने अपने पहलोठे प्रेम को त्याग दिया है। So the first love is our first works, time spent with God alone. और देखिए हमारा पहला प्यार, हमारा पहला काम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। Simply in worship, word and prayer. और केवल साधारण रीति से प्रार्थना, वचन, आराधना में समय बिताना, Listening to him और उसको सुनना and speaking to him. और परमेश्वर से बातें करना। So we should be mindful of all these barriers that can prevent our growth in intimacy with God. और हमें इन सारी रुकावटों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसी रुकावटें हैं जो परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता में रुकावट का कारण बन सकती हैं। And we also saw about the incorrect heart condition, like the Israelites. We might have strife or unforgiveness, something that's against God. और देखिए हमने इस बात को भी देखा कि हमारे हृदय की स्थिति, चाहे हो सकता है कि इस्राएलियों के समान हमारा हृदय भी कठोर हो, हमारे अंदर भी जलन हो, हमारे अंदर भी कड़वाहट हो, ये सब भी रुकावट का कारण बन सकती है। And sometimes it's the spirit of heaviness or confusion or some emotional baggages that we carry that we are not delivered from that does not help us to grow in intimacy with और God. कई बार ऐसी चीजें जो हमारे हृदय के अंदर में किसी बात से हमें चोट पहुंची है, हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें भी हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाने में रुकावट का कारण बन सकती है। So we spend some time, in fact, a lot of time in this intimacy, because once this foundation is laid strong, then our prayer has no bounds. और देखिए हम घनिष्ठता में ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि जब ये नींव मजबूत हो गई, जब ये सिद्ध हो गया, तब हमारी प्रार्थनाओं की कोई सीमा नहीं बचेगी। We just keep going from strength to strength. और हम बल से बल प्राप्त करते जाएंगे। So what are the two things that we saw till now? और अभी तक वो दो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमने देखा है? One is we should know the nature of God और सबसे पहला हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए, and pray in accordance with that. और उसके अनुसार हमें प्रार्थना करना है। And the second thing we saw is growing in intimacy with God. और दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के साथ हमें एक घनिष्ठ रिश्ता बनाना है। And the third thing is also very important, और तीसरी बात जो कि और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, the redemptive heart of God. और परमेश्वर के छुटकारे का हृदय। So we see that God's redemptive hand is throughout the Bible. और हम इस बात को देखते हैं कि पूरी बाइबल के अंदर में परमेश्वर का छुटकारे का हाथ कार्यरत है। So only when we understand God's redemptive heart, we will be able to pray in accordance to that nature of God. और जब हम परमेश्वर के उस छुटकारे के हाथ को समझ जाएंगे, तब हम परमेश्वर के उस स्वभाव के अनुसार ही प्रार्थना कर पाएंगे। God's heart is always redemptive in nature. और परमेश्वर का हृदय हमेशा स्वभाव से छुटकारे का हृदय है। Only He can change destruction and desolation. From nothing, He can make it to what He intended it to be. और देखिए केवल परमेश्वर ही है जो नाश से, बर्बाद से, जहाँ कुछ नहीं है उससे बदलकर जो वो चाहता है
उसमें उसको बना सकता है। So we will begin to look at life situations with the redemptive heart of God. और वो हम अभी अब जीवन की परिस्थितियों को परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के माध्यम से या दृष्टिकोण से देखेंगे। So God never quits on what he starts. परमेश्वर जो शुरू करता है उसे कभी बंद नहीं करता। He loves and saves to the uttermost. और देखिए परमेश्वर प्रेम करता है और उद्धार करता है अंतिम छोर तक, No matter what the cost. और भले ही कितना भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। We are his children. We are called to be like that. और हम उसके बच्चे हैं और हमको भी उसके समान बनने के लिए बुलाया गया है। So we will be able to look at life situations और हम जीवन की परिस्थितियों को देखने पाएंगे with the redemptive heart of God. और परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के अनुसार। So we will look at life situations or challenges और हम जीवन की चुनौतियों का और परिस्थितियों को सामना करते हैं in our own lives and for others और अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन के अंदर में भी with this redemptive heart of God. और परमेश्वर के इस छुटकारे के हृदय के साथ में। So we will co-work with God, और हम परमेश्वर के साथ मिलकर काम करेंगे aligning our heart to his. और अपने हृदय को परमेश्वर के हृदय से मिलाकर। So we see in the New Testament, और नए नियम में हम देखते हैं so Christ himself redeemed us to himself. मसीह ने अपने लिए स्वयं हमको छुड़ाया है। So we can read Colossians chapter 1 verse 20. जब कोलोसियों पहला अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ते हैं, Colossians chapter 1 verse 20. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20 वचन। Please read. Yeah. And through him to reconcile to himself of all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Amen. Amen. So we see that Christ reconciled everything back to himself by the blood he shed on the cross. और देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मसीह ने हमारा मेल मिलाप कराया है। So in the Old Testament also we see how, people were released from slavery. They had to pay an amount, and that is how they were released from slavery or some undesirable situation. और देखिए पुराने नियम में भी इस बात को हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार कोई गुलाम आजाद हो सकता था। अगर उसे आजादी चाहिए तो उसे दाम चुकाना पड़ता था। कोई आदत है उसके लिए भी उसे एक दाम चुकाना है और वो आजादी पा सकता है। Sometimes it's through a sacrifice, और कई बार एक बलिदान के द्वारा। but it is God who can turn things that is dry and desolate back to what it was originally designed. और देखिए परमेश्वर ही है जो कि एक सूखी और बर्बाद चीज को दोबारा से इसके मूल रूप में बदल सकता है। So when something deviates from the original plan of God, और यदि कोई भी परमेश्वर के मूल उद्देश्य से नकारात्मक परिस्थिति के अंदर में जाता है and it's recovered and restored, और वो दोबारा से ठीक अपने मूल रूप में अगर आता है, that is called redemption. और उसी बात को कहते हैं छुटकारा। So God is always redemptive in nature. और परमेश्वर जो है स्वभाव में हमेशा छुटकारे का स्वभाव रखता है। So he wants to restore things back to its original design. परमेश्वर अपनी सारी चीजों को जो उसने मूल रूप से रची थी वैसा ही दोबारा से करना चाहता है उन्हें। So sometimes in our life things go from good to bad and from sometimes bad to worse. और कई बार हमारे जीवन के अंदर में परिस्थितियां भले से बुरी और बुरे से बदतर हो जाती हैं। What do we do as God's children in those और situations? ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें क्या करने की आवश्यकता है? We pray with hope.
और हम आशा के साथ प्रार्थना करते हैं। God is able to restore things back in my life. परमेश्वर ही है जो मेरे जीवन के अंदर में चीजों को सही कर सकता है। God is the one who can give beauty for ashes. और परमेश्वर ही है जो राख को सुंदरता में बदल सकता And है। God will go to any extreme for his children to bring things back. और परमेश्वर किसी भी हद तक जा सकता है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। So we should have this attitude in our heart while praying for us and for others. और देखिए यही व्यवहार हमारे हृदय में होना चाहिए जब हम प्रभु से अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Rebuilding what is torn or completely destroyed, God can do it. और देखिए भले ही चाहे वो पूरी रीति से बर्बाद हो गया हो, कैसा भी हो गया हो, परमेश्वर ही है जो दोबारा से उसे स्थापित कर सकता है। And we can recover what is lost और जो खो गया उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। when we look at it with the redemptive heart of God. और जब जब हम परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के द्वारा उसको देखते हैं। So we as children of God, we should never lose hope in life और situations. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते जीवन की परिस्थितियों में हमें कभी आशा को नहीं खोना है। So for this, we must understand the redemptive process which God has for us. और इसके लिए वो छुटकारे की क्रिया को हमारे लिए जो परमेश्वर के पास है हमें समझने की आवश्यकता है। So we all can co-work with God in this redemptive work of God. और ताकि परमेश्वर के इस छुटकारे के कार्य में हम सब परमेश्वर के साथ सहयोग कर सकें। So we will learn about this redemptive process after the break. और ब्रेक के बाद में ये छुटकारे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम सीखेंगे। Thank you. धन्यवाद। ब्रेक जल्दी से आए।